So you have seen the neutrophil structure. See, the basophil structure is somewhat like this. We will show the great dark color granules, big granules in this, and in between those granules, glycogen is also there. Can you see the glycogen granules? Yes, sir. Small glycogen granules are also there. In mast cell, that glycogen is not there. In basophil, it is there. And eosinophil भी नहीं है glycogen granule. You will show a big pink color granule in that. Nucleus is two-lobed. Here in basophil, nucleus is again two-lobed. In neutrophil, nucleus is multi-lobed or three-lobed. More than two lobes are there. Mast cell में spherical है. So basophils, मैंने एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था बताने में. मैंने कह दिया था इस्नोफिल जो है नॉन फाइगोसाइटिक सेल में. Basophil and mast cells are non-phagocytic cells. Other granulocytes are phagocytes. This is neutrophils and eosinophils. These are phagocytes. Basophil and mast cells are non-phagocytes. These are non-phagocytic granulocytes. फिगर आप देख लिए बेसोफिल का. आप ये वाला फिगर बनाओगे. Yes, sir. That contain large granules filled with basophilic proteins. Okay, these are cationic proteins. You have learned in electron, अगर याद हो आप लोग को electron transport chain, तो उसमें the last acceptor for the electron pair is क्या है? ऑक्सीजन है. इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑक्सीजन के पास जाता है. ठीक है, ऑक्सीजन रिड्यूस होता है और वो फर्दर अब रिड्यूस नहीं हो सकता है. H2O प्रोड्यूस होता है. तो तब होता क्या है कि ऑक्सीजन का फुल्ली रिडक्शन नहीं हो पाता है. कभी कभी एंजाइम द कॉम्प्लेक्स 4 जो है वही करता है लास्ट में ऑक्सीजन का रिडक्शन. कॉम्प्लेक्स 4 जो है it is multi subunit protein. उसमें there is one subunit which is responsible for fixing this, कि कोई ऐसा स्पीसीज बाहर ना निकल जाए वहां से जो कि फुल्ली रिड्यूस नहीं हुआ है. जैसे O2, और O2 के पास इलेक्ट्रॉन तो आ गया लेकिन हाइड्रोजन नहीं आया. ओके, या तो क्या होगा? दैट O2 विल बी माइनस, हैविंग चार्ज, माइनस चार्ज होगा उसके पास. और वो O2 that has the potential to destruct other macromolecules or other structures, macromolecular structures, because that reactive oxygen species is highly reactive. It can bind with other molecules. So to tackle that problem, this basophil is filled with basophilic proteins, and these proteins, what they do? Sorry, वो इस्नोफिल में होता है, गलत बता रहा है. वो इस्नोफिल बताएंगे तब होगा. रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ठीक है, अभी समझ लीजिए. इस्नोफिल में है these are the cationic proteins, and these cationic proteins are involved in they function that induces the formation of reactive oxygen species. So that tackle these cationic proteins. So basophils, they contain large granules and basophilic proteins, यानी acidic proteins है, base loving proteins है.
So that's why they stain blue. Basophils relatively rare in the circulation, but can be very potent. In response to binding of circulating antibodies, basophils release the contents of their granules because the basophils have the receptor for antibodies. And basophil also has the receptor for anaphylatoxins. Basophil has also the receptor for complement regulatory proteins, and other many types of receptors are present on the basophil surface. So the basophils is releasing the content in response to those specific receptors. Anaphylatoxin receptor अगर एक्टिवेट हुआ तो some other type of content will be released. If that regulatory protein is attached bound to its ligand, then other type of reaction will happen. Okay, so basophil release the contents of their granules. And histamine, आप लोग मोटा-मोटी histamine याद रखो. Histamine is the one of the best known proteins in basophilic granules. यहाँ proteins लिख रहा है histamine को. Histamine is not the protein. Okay. Histamine basophilic granules, and that histamine increases the blood vessel permeability. हिस्टामिन कब रिलीज हुआ? जब C5a C3a रिसेप्टर बाइंड हुआ था और स्मूथ मसल का एक्टिविटी भी बढ़ा रहा था. बेसोफिल और इस्नोफिल आगे देखेंगे हम लोग, आर क्रिटिकल टू आवर रेस्पॉन्स टू पैरासाइट्स. सो एक तरह से इसके अंदर जो बेसिक प्रोटीन्स हैं, ओके, एंड द बेसिक कंटेंट्स, और इस्नोफिल के अंदर भी जो एसिडिक कंटेंट है, दैट एसिडिक कंटेंट जो है ये इवॉल्व हुआ है एक्चुअली इवोल्यूशन में, कि पहले ये मैक्रोफाजेस थे. सम मैक्रोफाजेस वेयर नॉट एबल टू इंटरनलाइज द लार्जर पैथोजेंस. तो बड़ा पैरासाइट के लिए हमारे पास मैकेनिज्म है कि बेसोफिल और इस्नोफिल अपना एसिडिक और बेसिक कंटेंट देगा. तो सो द बड़ा पैरासाइट विल बी, लार्जर पैरासाइट्स विल बी, बट वेयर तो उस our response to parasites, particularly helminthes, but in areas where worm infection is prevalent, histamines are best appreciated as the cause of allergy symptoms. Like neutrophils, basophils may also secrete cytokines that modulate the adaptive immune response. तो मोटा मोटी ये 3 पॉइंट आप याद रखोगे. बेसोफिल का जो कंटेंट, जैसे अब इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, जहां पर हाइजीन का प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है, क्या हुआ कि जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइज्ड होते गए वो और ज्यादा हाइजीनिक होते गए. तो यूरोपियन कंट्री जहां ज्यादा साफ सुथरा रहते हैं वहां पर बेसोफिल्स को काम नहीं मिल रहा है ज्यादा. वहां पर वर्म्स, पैरासाइट्स से एनकाउंटर कम हो रहा है. तो बेसोफिल का कंटेंट जब बाहर आ रहा है तो हिस्टामाइन की वजह से जो है एलर्जी सिम्टम हो रहा है इन दैट पॉपुलेशन. सो यू विल फाइंड द एलर्जी सिम्टम्स इन दोज पॉपुलेशंस. बट हियर बिकॉज वी हैव लेस hygienic practices than them, so our basophils are engaged with worm infections, so we do not encounter these allergy symptoms here. फिर भी जिस सोसाइटी में ज्यादा साफ सुथरा से रहते हैं, ये फिल्म वाले, बॉलीवुड वाले, वो सब बहुत एलर्जी और ये सब होता रहता है. तो आप याद रखोगे बेसोफिल का क्या काम.
हिस्टामिन का भी, और पैरासाइट इन्फेक्शन में भी, बिकॉज इट्स कंटेंट विल cause a discomfort for the parasite in that environment, basic and acidic environment. And histamines, when released alone, it can cause allergy symptoms. ओके और एक बेसोफिल का काम बता दिया आपको पहले ही कि बेसोफिल के ऊपर अब रिसेप्टर के संदर्भ में आप सोच लोगे। बेसोफिल के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर्स है, C5A C3A रिसेप्टर्स, तो वो भी आप एक्सप्लेन करोगे। एंड बेसोफिल्स आल्सो रिलीज साइटोकाइन्स लेटर, ओके, लाइक न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल भी यही काम कर रहा है। बेसोफिल्स में आल्सो सिक्रीट साइटोकाइन्स दैट मॉड्यूलेट द एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स, और ये साइटोकाइन सिक्रीट करने के बाद एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स के सेल्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स, उन पर इफेक्ट पड़ रहा है। हम लोग आगे पढ़ेंगे बी सेल मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों का, टी सेल भी इसके बाद, ओके। फिर देखिए मास्ट सेल्स, दीज आर द मास्ट सेल्स, and mast cells are released from the bone marrow into the blood as undifferentiated cell, ठीक है। देखिए फर्स्ट फिगर को आप फिर से देखिए, mast cell is released from the bone marrow as undifferentiated cell. So this is the basophil progenitor cell is undifferentiated. It is released from the bone marrow, and this basophil progenitor is later developing into basophil and then differentiating into mast cell. So they mature only after they leave the blood. ठीक है, ब्लड में भी पहले कहाँ आया, बोन मैरो से वो ब्लड में आया। ब्लड में भी अभी जब तक ब्लड में है वो अभी भी मैच्योर नहीं हुआ, बेसोफिल स्टेज में। ब्लड से जब मास्ट सेल आर फाउंड इन ब्लड से जब वो टिश्यू में आया, देन मास्ट सेल इज डिफरेंशिएटिंग। सो दैट इज व्हाई मास्ट सेल्स कैन बी फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ टिश्यूज, सच एज वो सारे टिश्यू जहां पर पैथोजन का एनकाउंटर बराबर होते रहता है, जैसे स्किन, स्किन के नीचे डर्मल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। और फिर इंटरनल लाइनिंग जो है, एक्सटर्नल लाइनिंग तो स्किन हो गया, इंटरनल लाइनिंग जो है जैसे इंटेस्टाइन का नेजोफेरेंजियल रीजन है, ठीक है, और जेनिटो म्यूकोसल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, इंटेस्टाइन, इसोफेगस, ये सब के म्यूकोसल, इन सब के म्यूकोसल एपिथेलियल टिश्यू में मास्ट सेल का प्रेजेंस है। और ये मास्ट सेल कहां से आ रहा है, इसका एंसेस्टर कौन है मास्ट सेल का? आप इस फिगर को फिर से समझिए, देख रहे हो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है हमसे सर कि एक्चुअली कौन सा सेल कौन सा बन रहा है। फिर से देखो, आप दिख रहा है एक बार में पूरा? सर देखिए यहाँ पर आप लिखोगे, फिगर जो बनाओगे, आप कहोगे कौन सा ब्रांच किधर गया, यहाँ पर कंफ्यूजन लग रहा होगा ना। आप बनाओगे हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल तो समझ गए, वहां से एक ब्रांच हो गया कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल, ओके। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल से फिर आप एक लाइन बनाओगे, ऐसे करके डिफरेंशिएट किया इनटू ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनाइटर, इस्नोफिल प्रोजेनाइटर, बेसोफिल प्रोजेनाइटर, मेगा कैरियोसाइट,
एंड एरिथ्रॉइड प्रोजेनाइटर। ये सब कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल के प्रोजेनाइटर्स हैं। एंड देन फिर ग्रेनुलोसाइट प्रोजेनाइटर से फिर स्ट्रेट लाइन है। ओके, उससे न्यूट्रोफिल एक बन सकता है या मोनोसाइट भी बन सकता है। ओके, इस्नोफिल प्रोजेनाइटर से सिर्फ इस्नोफिल, बेसोफिल प्रोजेनाइटर से बेसोफिल, देन बेसोफिल टर्न इनटू मास्ट सेल, मेगाकैरियोसाइट से प्लेटलेट्स, एंड एरिथ्रॉइड प्रोजेनाइटर से सिंपल एरिथ्रोसाइट। और यहाँ कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल से डायरेक्टली डेंड्राइटिक सेल्स भी बन सकते हैं। और मोनोसाइट्स जो अभी हम आगे आप लोगों को बताएंगे, इसका भी इंटरेस्टिंग रोल है मोनोसाइट का। ठीक है, मोनोसाइट भी कई तरह के होते हैं, पेट्रोलिंग मोनोसाइट, इन्फ्लामेटरी मोनोसाइट। कुछ मोनोसाइट जो है पेट्रोलिंग करते रहता है अलोंग द ब्लड वेसल, वो चलते रहेगा, वो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के हिसाब से नहीं चलता है, वो पेट्रोलिंग करता है, अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है हार्ट से लंग इधर। ओके, तो उस वो एक तो सेल्स हुए धारा के साथ चल रहे हैं अपने आप, बट दीज आर द पेट्रोलिंग सेल्स, स्पेशल टाइप ऑफ मोनोसाइट्स। तो ये आप डायग्राम बना दोगे इधर, सिंपल है, ये समझ गए। कॉमन Yes, sir. प्रोजेनाइटर से आप ये सारे प्रोजेनाइटर निकालोगे, 3, 4, 5। ठीक है, और एक छठा ये प्रोजेनाइटर नहीं है, टर्मिनली डिफरेंशिएटेड है। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर से डेंड्राइटिक सेल भी डायरेक्ट। तो ये कर दोगे। आज मेरा एम है कि ये माइलॉइड प्रोजेनाइटर खत्म कर देना है। ठीक है, इसीलिए सिर्फ इस बार हम तो नोट लेके आ गए, जल्दी जल्दी इसको मिस करना है। किसी को अगर है प्रॉब्लम तो बीच में रोक के पूछना। मास्ट सेल्स जो है डिस्कस कर ही रहे थे, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है एंड दे मैच्योर ओनली आफ्टर लीविंग द ब्लड। ओके, जब टिश्यू में आएगा तब मास्ट सेल डिफरेंशिएट होता है। तो दे आर फाउंड इन स्किन टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू यानी, ओके, और कनेक्टिव टिश्यू ऑफ वेरियस ऑर्गन्स और म्यूकोसल इपिथेलियल में भी। ठीक है, रेस्पिरेटरी, जेनिटो यूरिनरी, डाइजेस्टिव और लाइक सर्कुलेटिंग बेसोफिल्स। These cells have large number of cytoplasmic granules. ठीक है, ये तो सर्कुलेटिंग नहीं है मास्ट सेल। सर्कुलेटिंग कौन था, इसका पिताजी बेसोफिल, जिससे ये डिफरेंशिएट हुआ। और मास्ट सेल जब टिश्यू में चला गया तो कैसे सर्कुलेट करेगा, टिश्यू में वो लोकलाइज्ड हो गया, दे आर हार्बरिंग देयर। सो वहां ग्रेन्यूल्स जो है, वहां पर बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स में टिश्यू के अंदर भी हिस्टामिन है। तो अब जो यहाँ पर हिस्टामिन रिलीज होगा मास्ट सेल में, वो लोकली रिलीज्ड होगा, वो सिस्टेमिक रिलीज नहीं है, क्योंकि टिश्यू में है, उसी टिश्यू में रिलीज हो गया। ओके, एंड इन दैट टिश्यू बिकॉज ऑफ द हिस्टामिन रिलीज इन टिश्यू देयर लोकली, neutrophils and other cells will be attracted towards them, and other pharmacologically active substances are also released from mast cells. So the mast cells play an important role in also the development of allergy. Okay, histamine का रिलीज अगर मैकेनिज्म रेगुलेशन गड़बड़ा गया अगर उस पर्सन में, तो हिस्टामिन रिलीज होते रहेगा। तो क्या होगा, बिना मतलब का रिलीज हो रहा है, विदाउट एंटीजेनिक चैलेंज, विदाउट पैथोजन, विदाउट एनी काइंड ऑफ इंसल्ट, सो दैट हिस्टामिन विल कॉज एलर्जी। ओके, एलर्जी क्या था बताए थे ना क्लास में, एलर्जी तो फॉरेन सब्सटेंस है, बट दोज फॉरेन सब्सटेंसेस आर नॉट हार्मफुल।
So body should not release harmful substances also to eliminate those things. But body releases it and also releases it in very heightened response. पॉलन ग्रेन से किसी के बॉडी में नाक में जाएगा तो छींक तो आएगा ही, लेकिन किसी में बहुत हाइटेंड रेस्पॉन्स हो गया, बहुत उसमें इंटरनली हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो एलर्जी काउज होगा। अब देखिए, बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स शेयर many features and their relationship is not unequivocally understood yet. So still people are finding it out, and some of them speculate that basophils are the blood-borne version of mast cells, but others speculate that they have distinct origin and functions. Okay, but अभी आप यही मान के चलो, ये फर्स्ट वाला, they are the blood-borne version of the mast cell. जब तक कोई कंक्रीट एविडेंस या कोई इन सपोर्ट ऑफ दिस नहीं मिलेगा, तब तक हम इसी थ्योरी पर चलेंगे। Now coming to the eosinophils. Eosinophils are also like neutrophils. They are phagocytic cells. ठीक है, एक तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। फैगोसाइटिक सेल्स जो हो गए, उसका बता ही चुके लास्ट में, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एकदम इरेगुलर बनाना, ये इरेगुलर है, दे आर वेरी एक्टिवली फैगोसाइटिक सेल्स। दीज आर नॉट फैगोसाइटिक सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज समवट स्मूथ, not that much irregular, but eosinophil is phagocytic. Still you can see the phagosomes are there here. The plasma membrane is more rough than these. Okay, आगे चलें, समझ में आ रहा है? Yes, sir. न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसाइटिक सेल्स है, और जो भी फैगोसाइटिक सेल्स होगा, ठीक है, उसको माइग्रेट करने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जहां पर है, जरूरी नहीं है कि पैथोजन भी वहीं पर है, उसको पैथोजन के पास जाने की जरूरत होगी। सो ऑल दीज फैगोसाइटिक सेल्स दे नीड टू माइग्रेट, जैसे न्यूट्रोफिल भी माइग्रेट होगा, ठीक है। मास्ट सेल माइग्रेट होता है टिश्यू में, उसका वजह दूसरा है, क्योंकि टिश्यू में उसका जाना जरूरी है, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल। वो ऐसे भी हो रहा है, पैथोजन नहीं भी है तो भी ये जाएगा, ओके, और टिश्यू में जाकर के ये डिफरेंशिएट होकर हो जाता है, मास्ट सेल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कौन सा सेल? बेसोफिल्स। बेसोफिल कहां से आया? बेसोफिल प्रोजेनाइटर से आया। बेसोफिल प्रोजेनाइटर कहां से आया? माइलॉइड कॉमन प्रोजेनाइटर से। माइलॉइड कॉमन प्रोजेनाइटर कहां से आया? आपका हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से, जो कि बोन मैरो में था, ओके। So all these cells are coming. So eosinophils are also coming from the eosinophil progenitor. Eosinophil progenitor cells से आ रहा है, and they can also migrate because they are they are motile phagocytic cells, ठीक है। जो मोटाइल फैगोसाइटिक सेल्स हैं उनको माइग्रेट करने की जरूरत है, ठीक है। जो टिश्यूज में फैगोसाइटिक सेल्स हैं, जैसे अदर जैसे कि टिश्यू मैक्रोफाजेस, दे आर नॉट मोटाइल, दे स्टे देयर। तो मोटाइल फैगोसाइट्स माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू स्पेसिस, एंड their phagocytic role is significantly less important than that of neutrophils, okay? क्योंकि फैगोसाइट करने के लिए मेनली न्यूट्रोफिल्स को बनाया गया है, इसीलिए उसकी संख्या ज्यादा है नॉर्मल कंडीशन में भी, और इस्नोफिल बहुत कम है, तो जरूर इसका कुछ अलग काम भी होगा स्पेशल, जो कि कम मात्रा में चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए। सो स्पेशल फंक्शन इज देयर एज वेल एज इट इज आल्सो सम फैगोसाइटिक सेल।
but they are less important than neutrophils. And it is thought to that they play their most important role in the defense against multicellular parasitic organisms. बताए थे अभी जस्ट पहले, जैसे बेसोफिल कर रहा था हेलमिंथिस इन्फेक्शन में, वर्म इन्फेक्शन में हेल्प, ठीक है, बेसोफिल का कंटेंट, बिकॉज दैट कंटेंट इज एसिडिक एंड नाउ दिस कंटेंट इज बेसिक इसनोफिल के अंदर. So this content is also again causing a discomfort for multicellular parasitic organism, including worms. Okay, so they can be found clustering around invading worms. इसलिए कोई वर्म है, पेट में जोंक है, अगर कोई ब्लड में पैरासाइट है, so you can find the eosinophils around them. So whose membranes are damaged by the activity of proteins released from eosinophilic granules. वर्म के प्रोटीन को डैमेज करता है, मेम्ब्रेन के प्रोटीन को, कौन? इस्नोफिल के ग्रेन्यूल का कंटेंट. ठीक है, इस्नोफिल के ग्रेन्यूल के कंटेंट में क्या है? cationic proteins, ribonucleases, cytokines, chemokines, these things are there. Okay, so this component, I think that component is not mentioned here, which is causing the destruction to the worm. I think the basophil degranulation component is causing MVP. We will see if we find that out, but आप इस बात को समझ लीजिए कि इसका कंटेंट जो है is causing the discomfort for that larger parasitic organism. They can be found clustering around invading worms, whose membranes are damaged by the activity of the proteins released from eosinophilic granules. And like neutrophils and basophils, eosinophils may also secrete cytokines. So the cells which are secreting the cytokines, that means these cells are also participating in B cell and T cell development. हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं B cell T cell development, इसलिए आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा. जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा सब. ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि दिस सेल्स, ये सेल भी अभी फिलहाल के लिए याद रख लीजिए, अगला चैप्टर में यही कवर करेंगे. न्यूट्रोफिल भी, बेसोफिल भी, इस्नोफिल भी, ये सब जो है साइटोकाइन सीक्रेट कर रहा है. So those cytokines are regulating B and T lymphocytes. So जो भी B and T lymphocytes को रेगुलेट कर रहा है, that means they are influencing adaptive immune response. Okay, so they are at the interface of the adaptive immune component. These are the part of innate system because these are present before the infection. Okay, the basophil, eosinophil, these are the cells of the innate immune cells, you can say, because their effect is generalized, not the specific one. And adaptive immune response is the specific immune response. That is why this immune response is elicited later. First innate component comes, so these cells are at the boundary. Some of their functions are not at the boundary. Innate पर है पूरा completely. And when you talk in the term of cytokines, then you can visualize these cells at the interface of the innate and adaptive immune system component, immune responses. Okay, so in those areas, as I have discussed earlier, जहां पर health problem parasite का कम है,
जैसे कि यूरोप, अमेरिका, वहां पर इस्नोफिल जो है इज द कंट्रीब्यूटर ऑफ एस्थमा एंड एलर्जी। क्योंकि कुछ तो काम करेगा ही, ये बैठा तो रहेगा नहीं। और अफ्रीका में, एशिया में, जहां पर पैरासाइट्स ज्यादा हैं, ठीक है, पानी कंटामिनेटेड है, फूड कंटामिनेटेड है यहाँ पर, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत है, रिवर कंटामिनेटेड है, योर वाटर बॉडीज इज कंटामिनेटेड, और यहाँ पर मिलने वाले खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, सबका स्टैंडर्ड गिरा हुआ है। पैसा पर नहीं बोलना चाहिए, रिकॉर्डिंग चला, आई हैव सीन इट हाउ द ISI स्टैंडर्ड इज गिवन। ISI मार्का कैसे मिलता है मैंने देखा, ठीक है, सब बोगस है। तो यहाँ पर दे आर, बट उसका एडवांटेज हो गया, आप समझ लो इसका साइड इफेक्ट क्या मिल रहा है कि उसके बदले आपको एलर्जी, अस्थमा नहीं हो रहा है, क्योंकि बी एन टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, क्योंकि ये जो है सो कंटेंट ऑफ द इस्नोफिल इज इंगेज्ड विथ एलिमिनेटिंग द पैरासाइट्स हियर, लार्जर पैरासाइट्स। समझ में आया? आगे बढ़े। हेलो, आगे बढ़िए सर। अब देखिए, a second class of cells you can also visualize in this. Can you see these yellow cells here? यस सर। Yes, sir. Dendritic. माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल से ग्रेन्युलोसाइट भी निकल रहा है, एराइज हो रहा है, एरिथ्रोसाइट भी एराइज हो रहा है, मेगा कैरियोसाइट भी एक अलग तरह का सेल भी है, पॉपुलेशन है, जिसको कहते हैं हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो दीज आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो हाउ दे आर अराइव्ड, कैसे बन रहे हैं? दीज आर माइलॉइड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। सो सम आर लिम्फॉइड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। लिम्फॉइड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन है, बता सकता है कोई? कल हो रहा था डिस्कस। लिम्फॉइड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है, ये वाले डेंड्राइटिक सेल्स जो है, जो लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स से आए। डेंड्राइटिक सेल्स which has come from the lymphoid lineage is the lymphoid antigen presenting cell, और डेंड्राइटिक सेल जो माइलॉइड प्रोजेनाइटर से आए, ये माइलॉइड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। okay, and sometimes B cell also function as antigen presenting cell when it is activated, and that becomes very potent antigen presenting cell, B cell हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन से हो गए आपके इस पूरे सेल पॉपुलेशन में? माइलॉइड ओरिजिन से डेंड्राइटिक सेल जो है, या कॉमन लिख दो डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफाजेस, मोनोसाइट्स, ओके, एंड बी सेल, ओके। Yes, sir. नींद आ रहा है? No, sir. नो सर। सर लेकिन दोनों साइड है डेंड्राइटिक सेल, तो पहला टाइप लिम्फोइड का हुआ। दोनों डेंड्राइटिक सेल जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, बोथ टाइप ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगर एंटीजन प्रेजेंटेशन नहीं होगा तो टी सेल एक्टिवेट नहीं होगा। टी सेल को एक्टिवेट होने के लिए एंटीजन जो है वो प्रेजेंटेड फॉर्म में चाहिए, बताया पहले, इसको परोस के मिलना चाहिए। ये क्या करता है एंटीजन, इसीलिए देखो इसका स्ट्रक्चर आप डेंड्राइटिक सेल का, अभी हम पढ़ेंगे डेंड्राइटिक सेल, अभी नेक्स्ट टॉपिक यही है। डेंड्राइटिक सेल का स्ट्रक्चर देखिए, नाम भी इसका इसीलिए पड़ा डेंड्राइटिक सेल, इसके नाम पर मेनी डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट हियर, and you will be surprised to know that it continuously uptakes
फ्लूइड लार्जर देन इट्स सेल वॉल्यूम, इसका टर्नओवर बहुत हाई है, ये एक तरह का बहुत ही पोटेंट पंप है डेंड्राइटिक सेल। बहुत सारे डेंड्र, देखो इसका ये सब पिक्चर है और जैसे नर्व सेल का सेल बॉडी में आप देखोगे देयर आर मेनी डेंड्राइट्स, और एक बड़ा डेंड्राइट जो है उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। Axon, yes, sir. और यहाँ पर देखिए देयर आर मेनी डेंड्राइट्स, ये तो कार्टून नेटवर्क प्रेजेंट उसका फोटो है, असली फोटो ये है। There are many dendrites to increase the surface area of it.